اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ناظرین، کیا آپ بھی خوشحال مالداروں کی طرح کامیاب بزنس کر کے ہزاروں اور لاکھوں روپے کمانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کی ہاں ہے تو آج ہی سے اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا آسان بزنس کرنا شروع کریں اور چند ہی مہینوں میں کامیاب بزنس مین بننے کے طریقے بہترین تجربوں کے ساتھ سیکھیں۔ بزنس مین بننے کا یہ موقع کہیں آپ کے بھی ہاتھ سے چلا نہ جائے، اس لیے ابھی ہم سے رابطہ کریں۔ 9890963757 تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ آئیے ناظرین، پہلی بڑی خبر غزہ کے حالات کو لے کر میں آپ کو بتا دوں کہ غزہ کے المغازی کیمپ، جہاں پر یعنی مجبور اور محتاج اور جن کے گھر بار سب کچھ تباہ و برباد ہو چکے ہیں، ایسے لوگوں کو کیمپ میں رکھا جاتا ہے، مگر اسرائیل اتنا بڑا آتنکوادی ہے کہ اسرائیل کیمپ میں بھی بربریت کر رہا ہے۔ گزشتہ کل اسرائیلی آتنکوادی فوجیوں نے 70 فلسطینیوں کو شہید کیا ہے۔ حماس نے 4 دنوں کے اندر، حماس آپ جانتے ہیں کہ 2 ٹوک انداز میں اسرائیلی آتنکوادیوں کا مقابلہ کر رہا ہے، تو حماس کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم نے 4 دنوں کے اندر 48 اور اب تک یعنی 7 تاریخ سے لے کر اب تک 5000 سے زیادہ اسرائیلی فوجی کتوں کو ہلاک کیا ہے اور زخمی کیا ہے۔ خیر، غزہ کے المغازی کیمپ کے شہداء کی لاشیں آپ کو اسکرین پر نظر آئے گی کہ کس طریقے سے وہاں کے حالات ہے۔ اس وقت نیتن یاہو کا بھی بڑا بیان آیا ہے۔ اسرائیلی پارلیمنٹ سے اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ غزہ کی جنگ لمبی چلے گی، جلد رکنے کا امکان نہیں۔ پیر کو اسرائیل پارلیمنٹ سے خطاب کرتے ہوئے نیتن یاہو نے کہا کہ عسکری دباؤ کے بغیر اسرائیل غزہ میں قید بقیہ شہریوں کو آزاد نہیں کرا سکے گا۔ انہوں نے کہا کہ اگر فوجی دباؤ نہ ہوتا تو ہم اب سے چھڑائے گئے 100 سے زائد قیدیوں کو آزاد نہیں کرا پاتے اور بقیہ قیدیوں کو بھی فوجی طاقت کے بغیر آزاد نہیں کرا سکیں گے۔ ایکچول میں اسرائیل کے جو کئی قیدی ہیں وہ حماس مجاہدین کے قید میں ہیں، اور نیتن یاہو اتنا بڑا آتنکوادی ہونے کے باوجود ان مجاہدین کا مقابلہ نہیں کر پا رہا ہے، جن کو اس نے یہ کہا تھا شروع میں کہ ہم تمہیں 1 گھنٹے میں ختم کر دیں گے۔ آج 2.5 مہینہ مکمل ہو چکا ہے، لیکن اسرائیل اور امریکہ یہ دونوں مل کر بھی یہ تمام کے تمام آتنکوادی اتنے سے حماس اور مجاہدین کا مقابلہ نہیں کر پا رہے ہیں۔ 5000 کے قریب مجاہدین نے 5000 کے قریب اسرائیلی فوجیوں کو مارنے اور زخمی کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ آئیے ناظرین، راجستھان سے بڑی خبر آ رہی ہے۔ راجستھان میں جب سے اقتدار کی تبدیلی ہوئی، یعنی سطح کی بدل ہوئی اور بی جے پی آئی، تو بی جے پی کے ایم ایل ایز
बड़े गुंडे बन गए और वो गुंडों की और आतंकवादियों की जबान इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले एक एमएलए, आपने देखा होगा कि वो एक एमएलए है, वो एसडीएम को धमकी दे रहा है, वो वीडियो वायरल हुई थी। और अब दूसरा एमएलए है जो खुद आतंकवादियों की जबान बोलते हुए कह रहा है कि अब हम गुंडों को गोली मारकर इनकाउंटर करेंगे। यानी आप समझ सकते हैं कि कानून वानून इनके पास कुछ नहीं है। आप देखो उत्तर प्रदेश में भी भगवा आतंकवादियों के, बीजेपी के लोगों के, कार्यकर्ताओं के हौसले क्यों बुलंद है? इसकी वजह है उनको मालूम है कि हमारी हुकूमत है और हमारा कुछ नहीं बिगड़ता। तो अब राजस्थान में सत्ता की तब्दीली हुई, बीजेपी आ गई है, तो बीजेपी के एमएलएस आतंकवादियों की जबान बोलते हुए नजर आ रहे हैं। नाज़रीन, आसाम से एक बड़ी दर्दनाक खबर सामने आ रही है कि आसाम में बेटे के सामने उसकी मां को जिंदा जला दिया गया है। आसाम के तेजपुर में सफ़ाकाना और बड़ी बेरहमी के साथ कत्ल का यह मामला सामने आया है। लोगों के एक गिरोह ने एक खातून को चुड़ैल होने के शबा में बेदर्दी से कत्ल कर दिया। पुलिस ने बताया कि तेजपुर के बिहारी बारसन में लोगों के एक ग्रुप ने चुड़ैल होने के शुबा में एक 40 साला खातून को, महिला की लाश को आग लगा दी, महिला को आग लगा दी। पुलिस के मुताबिक वाकई में 6 अफराद मुलव्विस है। अब तक तेजपुर सदर थाना पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 दीगर अफराद फरार बताए जा रहे हैं। मॉब लिंचिंग के वाकयात मुल्क से खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं और मॉब लिंचिंग के कुछ ही बहाने हैं, जिस बहाने के जरिए से बिल्कुल भगवा आतंकवादियों की भीड़ किसी मुसलमान को मार देती है। यहाँ पर भी अभी मगरबी बंगाल से खबर आ रही है कि मगरबी बंगाल में मवेशी चोरी के शिबा में तीसरी लिंचिंग हुई है। मुर्शिदाबाद के रूहुल अमीन को भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला। ऐवान में, आप जानते हैं कि ऐवान में इन दिनों जराइम से मुताल्लिक 3 बिल पास हुए हैं, जिसमें दीगर जराइम के साथ मॉब लिंचिंग के खिलाफ सख्त सजाएं तजवीज़ की गई है और फांसी की सजा तक तजवीज़ है। मगर इस बिल के पास होने के बाद से ही मगरबी बंगाल में मॉब लिंचिंग के सिलसिलेवार 72 घंटों में 3 वाकयात दर्ज हुए हैं, जिसमें भीड़ ने मुस्लिम नौजवानों को पीट पीट कर कत्ल कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक ये ताजा वाकया हफ्ते की रात मुर्शिदाबाद जिले के हरी भगतपुर गांव में पेश आया, जहां एक मुस्लिम नौजवान को भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला। 45 साला शख्स, जिसकी शनाख्त रूहुल अमीन शेख के नाम से हुई है, इस पर बकरी चोरी का शुबा था। आप जानते हैं कि अब आने वाले साल के पहले महीने 22 जनवरी को राम मंदिर का भव्य ओपनिंग, इफ्तिताह, उद्घाटन होने जा रहा है और पूरी रोटी और पूरी मलाई, पूरा फायदा बीजेपी उठाना चाहती है। मोदी जी तो आपको मालूम है कि सहरा पहनने में माहिर है। ये जो राम मंदिर का काम है, इसका बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है, ये कोर्ट के आदेश पर तामीर हुआ है। लेकिन विश्व हिंदू परिषद का कहना है कि राम मंदिर की तामीर में 65 करोड़ राम भक्तों ने मदद की है। हरिद्वार उत्तराखंड के प्रेस क्लब में मुनक्किदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मिस्टर कुमार ने कहा कि राम हमारे लिए तहरीक का बाइस है, हमारी पहचान है। तकरीबन 500 साल की जद्दोजहद के बाद भगवान श्री राम 22 जनवरी को उनकी जाए पैदाइश पर दोबारा बैठ जाएंगे। तो अब लोगों ने कमेंट करना शुरू कर दिया कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने खुद कह दिया है कि वो जगह मस्जिद की है और मस्जिद किसी मंदिर को तोड़कर नहीं बनाई गई थी। यानी राम जी जो बैठेंगे वो अपनी जगह पर नहीं बैठेंगे, बल्कि मस्जिद में, मस्जिद के अंदर और मस्जिद की जगह पर राम जी बैठेंगे। या यूं समझिए कि राम जी का भी कोई इरादा नहीं है ऐसा कब्जा करके किसी मस्जिद या किसी की जमीन पर बैठने का, बल्कि राम भक्तों ने खुद राम को भी शर्मिंदा किया है, अल्लाह के एक घर को गिराया है और आतंकवाद का नंगा नाच खेला है और फिर जबरदस्ती राम जी को वहां पर बिठा रहे हैं। रियासत महाराष्ट्र के नागपुर से हमारे रिपोर्टर शहजाद अख्तर ने बड़ी दर्दनाक खबर इस वक्त भेजी है कि गुब्बारे का गैस, वो जो आपने देखा होगा कि बच्चे गुब्बारा लेते हैं, फुग्गा जिसे हम बोलते हैं, गुब्बारा लेते हैं और वो सिलेंडर से उसमें गैस भरता है, तो वो गुब्बारे वाला गैस सिलेंडर फट गया, जिसमें 4 साला एक मासूम शीजान नामी बच्चा जाँ बहक हो गया। घर के 2 लोग भी जख्मी हुए हैं। शहजाद अख्तर ने बताया कि
यात्रा और यात्रा में आने वाले रंग बिरंगे गुब्बारे बच्चों को अपनी तरफ मुतवज्जे करते हैं, लेकिन ये गुब्बारे और इन गुब्बारों में मौजूद गैस जानलेवा भी हो सकती है। नागपुर के सिविल लाइन इलाके में इतवार को एक अफसोसनाक वाकया पेश आया कि गुब्बारा फरोश के करीब सिलेंडर फट गया। धमाका इतना खतरनाक था कि सिलेंडर कई फीट उछला और सड़क के दूसरी तरफ खड़े शीजान के सर पर जा गिरा। इस वाक़े में शीजान के खानदान की 2 खवातीन भी जख्मी हुई है। तीनों को फौरी तौर पर सरकारी अस्पताल में दाखिल कराया गया, लेकिन डॉक्टर ने शीजान को मुर्दा करार दे दिया। चौंकाने वाली बात यह है कि मरने वाला शीजान सिलेंडर के करीब नहीं, कहीं नहीं था, वो सड़क के दूसरी तरफ खड़ा था। ताहम शीजान की मौत उस वक्त हुई जब उसके सर पर सिलेंडर जा गिरा। नागपुर पुलिस मजीद तफ्तीश कर रही है। हर शहर में गुब्बारे फरोश भीड़ वाली जगहों पर बगैर किसी इजाजतनामा या तरबियत के काम करते हैं। उनके सिलेंडर में नाइट्रोजन या हेलियम गैस होती है। इस सिलेंडर की देखभाल नहीं की जाती, इसलिए ऐसी लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है। नागपुर के इस अफसोसनाक वाक़े के बाद भी उम्मीद की जा रही है कि कुछ उसूल बनाए जाएंगे ताकि ऐसा वाकया दोबारा ना हो और गुब्बारों की फरोख्त से किसी की जान ना जाए। आपका पर्सनल डॉक्टर शावेद सेक्सोलॉजिस्ट। किसी भी सेक्स की प्रॉब्लम को लेकर आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको शुगर है, बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के आपका शुगर खत्म हो जाता है, बवासीर, खूनी हो या मस्से वाली हो, नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया भाई, अभी कॉन्टैक्ट। रियासत उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर से इस वक्त बड़ी खबर, 2 खबरें आ रही है जमीयत उलमा से मुताल्लिक। दोनों खबरें हैं। जी हाँ, जमीयत उलमा आप जानते हैं कि बिला तफरीक मजहब, मिल्लत, जात और धर्म देखे बगैर मानव सेवा करती है, मानवता और इंसानों की खिदमत करती है। मौलाना अमीनुल हक अब्दुल्ला कासिमी ने सिरसोल में सर्दी से परेशान लोगों को लिहाफ तकसीम किए। जरूरतमंदों को रजाई तकसीम करते हुए हजरत मौलाना अमीनुल हक अब्दुल्ला कासिमी और उनकी टीम नजर आ रही है। वहीं पर मौलाना ने जमीयत उलमा के बैनर तले बाकायदा नशा मुखालिफ मुहिम भी शुरू रखी और साफ सुथरा, सफाई सुथराई इस्लाम का हिस्सा है, ईमान की तालीमात का हिस्सा है, इसको भी बाकायदा उन्होंने मुहिम के तौर पर पेश किया। उन्होंने फरमाया कि माशरे को साफ सुथरा रखना और नशे की लत से बचाना हम सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है। इस वक्त जमीयत उलमा कानपुर इन दोनों मुद्दों पर काम कर रही है, नशा मुखालिफ मुहिम और सफाई बेदारी रैली। और ये मुहिम 21 दिसंबर से शुरू हुई है जो 31 दिसंबर तक चलेगी, यानी 10 दिन की जमीयत उलमा कानपुर की जानिब से यह मुहिम चलाई जा रही है। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। नाज़रीन, गुज़िश्ता कल यानी 25 दिसंबर 1924 को मुल्क के एक्स-पीएम साबिक वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी की पैदाइश का दिन मनाया गया और इस मौके पर बाकायदा नरेंद्र मोदी ने और उनकी पूरी टीम ने अटल बिहारी वाजपेयी की यूं समझिए कि वहां पर कब्र पर या जो भी बोले वहां पर जाकर बाकायदा फूलों का नजराना पेश किया। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी को मोहम्मद सोहेल लोखंडवाला और कई मुस्लिम नेताओं ने और कई सेकुलर नेताओं ने याद किया गुज़िश्ता कल। और क्यों याद किया, उसकी वजह उन्होंने ये बताई कि अटल बिहारी वाजपेयी की सोच में आज के भाजपाइयों की तरह तंग नजरी और गंदी ज़हनियत अटल बिहारी वाजपेयी की नहीं थी, बल्कि उनकी सोच कुशादा और वसी थी। मोहम्मद सोहेल लोखंडवाला ने कहा, वजीर आजम साबिक वजीर आजम के कामों को याद करते हुए बताया कि उन्होंने यानी अटल बिहारी वाजपेयी ने मेरे जमाने में हाजियों के कोटे में इजाफा किया था और उन्हें सऊदी अरब जाने वाले गुडविल डेलीगेशन में शामिल किया गया था। खैर, वजीर आजम साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी इस मुल्क के 3 मरतबा वजीर आजम रहे। पहली मरतबा वो सिर्फ 13 दिन वजीर आजम रहे, दूसरी मरतबा वो 1998 से 1999 यानी 11 महीने वजीर आजम रहे और तीसरी मरतबा जब वो बने तो 1999 से 2004 यानी 5 साल तक उन्होंने अपनी वजारत उज़्मा की मियाद को मुकम्मल किया। खैर, गुज़िश्ता कल उन्हें याद किया गया और लोगों ने कहा कि मुल्क में कई लीडर वजीर आजम बने, मगर अटल बिहारी वाजपेयी जी की शख्सियत एक अलग नुमाया शख्सियत थी जो आज के भाजपाइयों की तरह गंदी ज़हनियत की मालिक नहीं थी, नफरती ज़हनियत की मालिक नहीं थी, जो सिर्फ आज हिंदुत्व के नाम पर नफरतें फैला रहे हैं।
नाज़रीन, इस वक्त मुंबई से हमारे रिपोर्टर मुफ्ती अबू अय्यूब ने बताया कि पतंग की डोर, पतंग के धागे से जिससे उड़ाया जाता है, एक पुलिस कांस्टेबल का गला कट गया और जगह ही पर मौत हो गई। पुलिस कांस्टेबल डिंडोशी पुलिस स्टेशन से मुंसलिक थे। वो वर्ली के BDD चाल के रहने वाले थे। मैं आपको बता दूं कि पुलिस कांस्टेबल अपनी ड्यूटी मुकम्मल करके मोटरसाइकिल से अपने घर लौट रहे थे। 24 दिसंबर की शाम 5:30 बजे के करीब वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर मांझा उनके गले में फंस गया। जाधव को साइन अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने एडमिट होने से पहले ही उन्हें मुर्दा करार दे दिया। यानी आप समझ सकते हैं कि ये पतंग का मांझा जो है वो कितना खतरनाक साबित हो रहा है। और अब आप देखें कि अभी सर्दी का मौसम है और अभी फरवरी के महीने में भी और अलग अलग मैंने देखा कि गुजरात में त्यौहार मनाया जाता है पतंग का। न जाने उस दिन कितने परिंदों की मौत होती है और कितने लोगों के और मासूमों के गले भी कटते हैं, हाथ कटते हैं। तो कहीं ना कहीं हुकूमत ने इस चीज को लेकर सोचना चाहिए। नाज़रीन, आखिरी बड़ी खबर मेरी निगाहों के सामने। जी हाँ, गुज़िश्ता कल अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अपने शहर में जो गेंदलाल मिल कॉलोनी का इलाका है, वहां पर लब्बैक फाउंडेशन और गेंदलाल मिल के तमाम जवानों ने मिलकर एक शानदार इस्लाही मुआशरा पर प्रोग्राम मुनक्किद किया था, जिसमें मुकर्रिर के तौर पर मुझे ही बुलाया गया था। मैं आपको बताऊं कि ये खबर इसलिए भी अहम है कि गुज़िश्ता कल हमारे यहाँ इस प्रोग्राम में सैकड़ों हजारों मर्द और खवातीन ने हिस्सा लिया। और गेंदलाल मिल कॉलोनी स्लम एरिया है, मजदूर तबका एरिया है, गरीबों का मोहल्ला है, लेकिन वहां पर अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी तादाद में उलमाए किराम मौजूद रहे। हमारे शहर के शहर काजी मुफ्ती अतीकुर रहमान साहब, मुफ्ती अफजल साहब, मौलाना नसीर कासमी, कारी मुश्ताक साहब, हाफिज खालिद साहब, मुफ्ती आरिफ साहब और बहुत बड़ी टीम उस मौके पर मौजूद रही। और तमाम उलमा के सामने मैंने ये ऐलान किया कि अब कोई भी इमाम उस शख्स का निकाह नहीं पढ़ाएगा जो डीजे या गाने बजाने के साथ बारात लेकर आएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मोहल्ले में मुत्तफका तौर पर एक कमेटी बनी और कमेटी ने तय कर लिया कि कोई भी ऐसी बात मोहल्ले में हम होने नहीं देंगे और नाच गाना डीजे वगैरह के साथ शादियां होने नहीं देंगे। और किसी ने अगर इन तमाम चीजों को किया तो फिर हम उसका मुकम्मल तौर पर बायकाट करेंगे। इस मौके पर लब्बैक फाउंडेशन के जवानों की पूरी टीम, मस्जिद के तमाम जिम्मेदार, ऐसे ही मस्जिद के इमाम मोहतरम मौलाना दानिश, मुफ्ती आरिफ और जिम्मेदारों में नजीर भाई मुल्तानी, आसिफ भाई मुल्तानी, एजाज लाला, अमजद भाई और पूरी टीम, सबके नाम तो मैं बोल नहीं सकता, लेकिन पूरी टीम मौजूद थी। और पूरी टीम ने मशवरा करके मोहल्ले में एक अच्छा काम हो रहा है। मैंने उनका शुक्रिया अदा किया, खूब दुआएं दी और हाथ उठाकर उनसे कसम ली कि इंशाअल्लाह हम शरीयत के एतबार से निकाह को आसान बनाने की कोशिशें और मेहनतें करेंगे और निकाह में होने वाली खुराफात, नाच गाने और तमाम खुराफात को रोकेंगे और अल्लाह और उसके रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राजी करेंगे।